I'll start with motion. It's a very interesting chapter and very difficult too. Motion. This chapter we have studied in junior classes also. 6, 7, 8 में भी थोड़ा पढ़ा है. So let's start from there. What is motion? Or when do we say that object is in motion? So statement will be when position of object changes with respect to time. We say object is in motion. Motion क्या होता है? When position of object or particle changes with respect to time, we say object is in motion. एक object था, वो यहाँ से यहाँ चला गया, अभी यहाँ था, थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच गया, तो I'll say it was in motion, right? Now, motion अगर आप सराउंडिंग में देखोगे, आसपास कई टाइप के मोशन आपको नजर आएंगे. If I say how do we classify motion? Not very important, but ठीक है, classification of motion. Motion बहुत टाइप के आपको सराउंडिंग में नजर आएंगे. एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन. ये क्या होता है? जिसमें पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइक चला रहे हो या इवन आप वॉक कर रहे हो, तो वॉक कर रहे हो तो आप यहाँ से उठ के आप कहीं और जा रहे हो. सपोज यहाँ आप उठ के यहाँ चले गए, तो व्हाट वी से इज यू हैव चेंज्ड योर पोजीशन. आपकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो मैं बोलूंगा ऐसे मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, राइट? अभी इफ यू ऑब्जर्व योर फैन रोटेटिंग अबव योर हेड, तो वो फैन चल रहा है बट कहीं चल नहीं रहा है. इट्स नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स पोजीशन, राइट? तो वो जस्ट वहां पर रोटेट कर रहा है, तो उसका जो मोशन होता है उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन. एक और स्पेशल केस होता है वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेटरी मोशन. यू कैन से ऑसिलेटरी मोशन. जैसा स्विंग मशीन का नीडल होता है, दैट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग फ्रॉम वन अबाउट अ फिक्स पोजीशन, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, राइट? Now, we don't have this topic in our syllabus. We don't have this topic in our syllabus. Translational motion भी अगर आप देखोगे तो motion along straight line, इसको बोलते हैं motion in one dimension. Motion along straight line. इसी को rectilinear motion भी बोलते हैं. बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको अलग अलग बुक्स में. Rectilinear motion. मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ. ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ. इसी में एक टाइप होता है कर्वीलिनियर मोशन. कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग कर्व्ड पाथ. और एक होता है मोशन इन 3 डायमेंशन या स्पेस कह लो आप. मोशन इन 3 डायमेंशन. दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है. Luckily, we have only one topic among all. We have only one topic in our syllabus, and that is rectilinear motion, which also forms foundation or basis for all these rest of the topics. ये अच्छे से समझ में आया तो आगे जाके higher syllabus में you have all these types of motion in your syllabus in detail. तो ये अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, then you will be able to understand the rest of the topics which you have to study in higher syllabus, right? So what we have in our syllabus is rectilinear motion. Rectilinear motion क्या होता है? Motion along straight line or one dimension. तो हम क्या लिखेंगे? Statement: if any object or particle moves along straight line path, then it's said to be an rectilinear motion. Motion in one dimension. Said to be in rectilinear
motion or motion in one dimension. मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, राइट। सो सिर्फ यही टाइप का मोशन हमारे सिलेबस में है, क्या है वो? रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। जैसे एक बड़ा सा हाईवे, देयर इज अ लॉन्ग हाईवे एंड यू आर driving a car or riding a bike or maybe you are running on a straight highway or walking on a straight highway, तो वो जो आपका मोशन है, वो जो स्ट्रेट हाईवे पे आप जा रहे हो, that is said to be rectilinear motion or motion in one dimension, right? So before we begin with motion in one dimension, few basic terms you need to understand. For example, instant and interval. Let's see these two words, instant and interval. ये क्या होता है? What is instant and what is interval? Instant किसको कहते हैं and interval किसको कहते हैं? So class begins at 11:15. तो ये क्या हो गया? Instant हो गया. The instant teacher enters in the class, right? तो instant क्या हो गया? Moment of time. हाँ, say example बोल रहे हैं, class begins at 11:15. तो 11:15 को class start होती, तो वो 11:15 क्या हो गया? Instant हो गया. The instant the teacher enters the class, the moment the teacher enters the class. फिर class 11:15 से 12:15 तक है, तो ये 11:15 से जो 12:15 हो गया, ये एक इंटरवल होता है, राइट? तो इंस्टेंट, एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा मैं। एग्जांपल क्या हो गया? इंस्टेंट का क्लास बिगिंस एट 11:15, ये हो गया आपका इंस्टेंट। 11:15 क्लास स्टार्ट होनी है, तो दैट इज योर इंस्टेंट। देन क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटरवल? इंटरवल क्या होता है? जैसे इंटरवल क्लास इज फ्रॉम 11:15 to 12:15। सो ये जो चीज बन गई, ये कहलाती है इंटरवल। तो इंस्टेंट और इंटरवल ये दो अलग अलग चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि many quantities are defined for an instant and many quantities are defined for an interval, right? For example, एक छोटा सा स्टेटमेंट देता हूं, एक्सीडेंट, या ये समझ लो पुलिस आपके स्पीड को देख के चालान काटती है, राइट? दे फाइन यू सीइंग योर स्पीड। तो कौन सा स्पीड? वो थोड़ी ना देखते कि यहां से स्टार्ट किया, यहां खत्म किया, फिर वो इतना डिस्टेंस हो गया, इतना टाइम हो गया, डिवाइड कर, ऐसा कुछ नहीं देखते। पर्टिकुलर मोमेंट में अगर आपका स्पीड, सपोज वहां पर स्पीड लिमिट दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, द मोमेंट यू क्रॉस दैट स्पीड 61 किलोमीटर पर आवर हुआ, तो वो आपको फाइन कर देंगे, राइट? सो मेनी टाइम्स वी नीड टू डिफाइन और स्टडी अ थिंग at particular instant, and sometimes we study at particular interval, right? आप 11:15 क्लास में नहीं थे, क्लास नहीं पहुंचे, that means you are late, but 11:15 से 12:15 तक आप क्लास में सुन बिल्कुल नहीं रहे थे, तो उस पूरे इंटरवल में आप गायब थे। Maybe it's not a good example, मतलब see, जैसे आप चल रहे हो कहीं, right? You are walking on a road, ठीक है? And say there's a bird, there's a building, and somebody drops a stone from top of the building, right? That stone will hit you or not will depend on what? कि जिस इंस्टेंट ये स्टोन यहाँ गिरता है, उस इंस्टेंट आप यहाँ पे थे या क्रॉस कर चुके थे। तो ये एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, वो उस इंस्टेंट पे डिपेंड करता है, राइट? वो उस पूरे इंस्टेंट पे डिपेंड करता है। बट सपोज यू आर वॉकिंग
from home, you started at 10 o'clock, and this is a school which begins at 10:30. So you will reach here at by 10:30 or not will depend on this entire interval. इस पूरे इंटरवल में आप कब चले, कब रुके, कभी सिग्नल लगा, कभी क्या हुआ, इस सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आप टाइम पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे. I'll repeat. आप वॉक कर रहे थे, एक बिल्डिंग है, वहां से किसी ने कुछ पत्थर गिराया, ये पत्थर आपको लगेगा कि नहीं लगेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, उस इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट आप यहाँ पे थे या नहीं थे. ये आपका स्कूल है, स्कूल बिगिंस एट 10:30, यू स्टार्टेड एट 10. आप स्कूल टाइम पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पूरे इंटरवल में कि 10 से 10:30 के बीच में आपने क्या किया. आप कहीं रुक गए फ्रेंड के पास बीच रास्ते में, ये क्या हुआ मालूम नहीं. तो आप 10:30 स्कूल पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे, ये कौन डिसाइड करेगा, ये पूरा इंटरवल कहाँ से 10 बजे से लेके 10:30 बजे, 10 से 10:30, दिस एंटायर इंटरवल विल डिसाइड whether you will reach there on time or not. बट अगर ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई स्टोन जमीन पे गिरने वाला है तो ये आपको हिट करेगा, ये एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, वो एक इंस्टेंट पे डिपेंड करता है. एनीवे, समरी इज, ये दोनों वर्ड्स अलग हैं. कौन से वर्ड, इंस्टेंट एंड इंटरवल. These two words are different. Many quantities are defined for instant and many quantities are defined for interval, right? तो ये दोनों टर्म्स आपको क्लियरली समझ में आने चाहिए. हाँ, तो स्टेटमेंट एक और ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे. Some quantities are defined for an instant interval and few are defined at an instant and few are defined for both. Few are defined for both. तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज बोल रहा हूं मैं. कई क्वांटिटीज होती हैं वो एक इंस्टेंट के लिए डिफाइन होती हैं, कई क्वांटिटीज होती हैं जो एक इंटरवल के लिए डिफाइन होती हैं, कई क्वांटिटीज दोनों के लिए डिफाइन होती हैं. फॉर एग्जांपल स्पीड ले लो आप, जिसने ये चैप्टर थोड़ा पढ़ रखा होगा या शायद जूनियर क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से, तो उसने ये वर्ड सुना होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एक और वर्ड सुना होगा एवरेज स्पीड. दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं. Instantaneous speed is defined for an instant, is speed at any instant, right? And average speed, पूरे इंटरवल में एवरेज करते हैं, speed averaged over an interval, तो अब जैसे स्पीड मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो स्पीड भाई दोनों के लिए डिफाइन होती है, एक इंस्टेंट के लिए भी स्पीड डिफाइन होती है, एवरेज के लिए भी डिफाइन होती है, एक इंटरवल के लिए भी डिफाइन होती है. जो आपके स्पीडोमीटर में दिखा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, 60, 63, 58, 72, तो वो क्या दिखा रहा है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखा रहा है, राइट. बट फिर आप देखते हो कि मैं 10 किलोमीटर ट्रेवल किया और मुझे वॉक किया और मुझे 2 घंटे लग गए, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर, ये जो चीज दिख रही है आपकी एवरेज स्पीड होती है, राइट. विल डिस्कस दीज टू टर्म्स इन डिटेल, बट जस्ट टू मेक दीज टर्म्स क्लियर, इंस्टेंट एंड इंटरवल, आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल. ये वापस से मैं बताऊंगा डिटेल में कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, बट वो टर्म समझाने के लिए कि इंस्टेंट और इंटरवल अलग क्या है, क्यों है, ये एग्जांपल लिखा मैंने, राइट. तो वापस बोल दूं मैं, इंस्टेंट और इंटरवल दो अलग अलग टर्म्स हैं. इंस्टेंट किसको बोलते हैं, मोमेंट ऑफ टाइम. जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, क्लास बिगिंस एट 11:15, आपने लॉग इन किया 11:15 पे, तो वो क्या हो गया, वो इंस्टेंट हो गया. और फिर मैंने बोला क्लास 11:15 से 12:15 तक चलेगी, तो वो एक इंटरवल हो गया, राइट. इंटरवल कोई जरूरी नहीं है 1 आवर का ही हुआ, हाफ एन आवर का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 सेकेंड का भी हो सकता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी हो सकता है, 0.0001 सेकेंड का भी इंटरवल हो सकता है. दिस इज ऑल्सो इंटरवल, राइट. तो इंटरवल कैन बी 1 hour, 10 hour, 1 day, 1 year,
और 0.1 सेकेंड, वो कुछ भी हो सकता है. इंटरवल इज ड्यूरेशन, राइट? तो इंस्टेंट इज व्हाट? मोमेंट ऑफ टाइम. इंस्टेंट इज मोमेंट ऑफ टाइम. And interval is what? Interval is period of time. Period. इतने से इतने बजे. एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे इसका at 11. ये हो गया इंस्टेंट. From 11 to 11:05 ये हो गया इंटरवल. ये 5 मिनट का इंटरवल हो गया और ये इंस्टेंट हो गया कि 11 बजे चीज हो रही है तो वो इंस्टेंट हो गई, राइट? सम क्वांटिटीज आर डिफाइंड फॉर इंस्टेंट एंड सम आर डिफाइंड फॉर इंटरवल. सो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए. वापस से बोल देता हूं एक बार. तो इंटरवल क्या है? इंटरवल इंस्टेंट क्या है? मोमेंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल आई सेड एट 11 o'clock. व्हाट इज इंटरवल? इंटरवल इज पीरियड ऑफ टाइम. जैसे फ्रॉम 11 to 11:05. तो ये 5 मिनट का इंटरवल हो गया और ये इंस्टेंट हो गया, राइट? Some quantities are defined for an interval and few are defined for an instant and few are defined for both of them. Clear है? Okay. Now, interval हो गया, instant हो गया. Now, let's discuss how do we locate points. Maths का topic है ये, locating points. पता नहीं junior class में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, but I'll explain. Locating points. एक एग्जांपल लेता हूं मैं. सपोज आप एक हाईवे पे जा रहे हो. मे बी दिस इज वन स्टॉप. ये मुंबई है, राइट? मुंबई है एंड यू आर ड्राइविंग टुवर्ड्स पुणे, राइट? आप पुणे की तरफ जा रहे हो. दिस इज स्ट्रेट हाईवे, राइट? सर स्ट्रेट हाईवे, कहीं पे टर्न नहीं, ऐसा इमेजिन मत करना. देयर इज अ स्ट्रेट हाईवे एंड एट सम इंस्टेंट यू आर हियर. कोई तो एक जगह है and your parents call and say ask you where exactly you are. So Mumbai se you are driving towards Pune and at some instant you are here. This is a straight highway and say your parents call you to check where exactly you are. तो आप कैसे explain करोगे कि आप यहाँ हो? How will you explain that you are here? ये point आप कैसे बताओगे फोन पे? Anyone? Okay, मैं बताता हूँ. See, if you have observed, रोड साइड में माइलस्टोन लगे होते हैं. देयर आर माइलस्टोन्स. वो माइलस्टोन्स में मेंशन किया होता है डिस्टेंस 15 किलोमीटर फ्रॉम पुणे. ऐसा लिखा होगा पुणे 15 किलोमीटर, राइट? तो आप क्या बताओगे? माइलस्टोन देख के बताओगे कि टुवर्ड्स पुणे जा रहे हैं एंड पुणे से 15 किलोमीटर बचा हुआ है. So your parents will be able to understand where exactly you are and how much time you will need to reach Pune or wherever, right? So question was how to locate points. Points आप locate कैसे करते हो? मैथ्स में अभी आता हूँ मैं, पहले फिजिक्स की बात कर रहा हूँ. तो एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन दिया मैंने कि आप ड्राइव कर रहे हो मुंबई से एंड यू आर ड्राइविंग टुवर्ड्स पुणे. आप पुणे जा रहे हो. क्वेश्चन ये आया कि somewhere in between your parents had called and asked कि आप कहाँ पे हो. तो हाउ विल यू एक्सप्लेन वेयर यू आर? तो उसके लिए हमने क्या किया? माइलस्टोन का यूज किया. रोड साइड में देखना माइलस्टोन्स लगे होते हैं या ऊपर बोर्ड भी लगे होते हैं कि पुणे इतना किलोमीटर, खोपोली इतना डिस्टेंस है, मुंबई इतना डिस्टेंस है, राइट? तो वो डिस्टेंस देख के आपने बताया. तो डिस्टेंस देखते ही आपके पेरेंट्स समझ जाएंगे कि वेयर यू आर. तो ये क्या है? ये एग्जैक्टली मेथड है पॉइंट लोकेट करने का. कैसे? हम क्या करते हैं? लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट लाइन. मैथ्स में ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आई बिलीव. फिर से बता रहा हूं. ये एक लाइन है, इसमें ये पॉइंट आपने ऐसे रख दिया, ऐसा ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट. अब मुझे ये पॉइंट बताना है तो आई विल नॉट पुट माय फिंगर्स, राइट? मैं क्या करूंगा? इस पूरी नंबर लाइन पे एक फिक्स पॉइंट लूंगा एंड आई विल नेम इट एज ओरिजिन. मैं ओरिजिन बोलूंगा उसको. इसको मैं एक लाइन का नाम दे दूंगा. आई विल कॉल इट एक्स एक्सिस या एक्स लाइन. इसको एक्स एक्सिस बोल दूंगा या तो एक्स लाइन बोल दूंगा. एक पॉइंट मैं फिक्स कर दूंगा
उसको बोलूंगा कि ये 0 है मेरा, आई विल कॉल इट ओरिजिन, और मैं उसको बोलूंगा 0. Then what I'm going to do is I'll mark few points at given distances. Let us assume this is meter. So I'll mark 1 meter, एक मार्क बनाऊंगा और उसको बोलूंगा x equals to 1. Then I'll mark same distance पे 2. Then I'll mark 3. Then I'll mark 4. Then I'll mark 5 and then I'll 6. Now रोड तो किसी भी साइड एक्सटेंड हो सकती है, इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, इधर भी एक्सटेंड हो सकती है. That means what? I need to name or number the points on both the sides. So इधर भी नंबरिंग करेंगे हम लोग. यही डिस्टेंस में ये साइड मार्क करूंगा. Now question is, shall I write 1 here? No, because फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. ये पॉइंट भी 1, ये पॉइंट 1 कैसे चलेगा? तो I'll name it as -1. ये 2 है, इतने डिस्टेंस पे मैंने एक दूसरा पॉइंट मार्क किया, इसको -2 बोलूंगा, इसको -3 बोलूंगा, इसको -4 बोलूंगा. अब आप कहां पे हो? सपोज यू आर हियर, आप एक इंस्टेंट कहां पे हो? यहां पे हो. तो मैं बोलूंगा यू आर एट x इक्वल्स टू 2. तो जब मैं बोलूंगा यू आर एट x इक्वल्स टू 2, तो इमीडिएटली आपकी पोजीशन समझ में आ गई सबको. मैं इस पे मूव कर रहा हूं, ये एक रोड है जिसपे मैं वॉक कर रहा हूं. तो जब मैं यहां पहुंचा, आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मैं बोलूंगा मैं कहां हूं? आई विल से आई एम एट x इक्वल्स टू 4. तो x इक्वल्स टू 4 पे बोलना से बाकी सबको समझ में आ जाएगा कि वेयर एग्जैक्टली आई एम, राइट. तो ये मेथड होता है पॉइंट्स लोकेट करने का ऑन स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन पे अगर मुझे पॉइंट्स लोकेट करने हैं तो मुझे पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें एक पॉइंट फिक्स करूंगा, उसको नाम दूंगा ओरिजिन, उस पर लिखूंगा कि ये x इक्वल्स टू 0 है. फिर कोई यूनिट लूंगा, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, सम सेंटीमीटर्स, व्हाटएवर. फिर ऐसे मार्क करूंगा 1 2 3 4 5 6. तो इधर नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6. फिर रोड दोनों साइड जा सकती है. आपके घर के सामने रोड है, वो रोड इधर भी जाती है, इधर भी जाती है. तो आप यहाँ से शुरू करते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो. तो इधर के पॉइंट्स भी लोकेट करने पड़ेंगे. to locate the points on this side, फिर से वही 1 यूनिट डिस्टेंस लूंगा मैं, मे बी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर. एंड दिस टाइम आई विल नॉट नंबर देम एज 1 2 3, इंस्टेड आई विल नंबर देम. ये साइड जैसे मार्क किया था, इधर भी मार्क करूंगा, बट दिस टाइम आई विल मार्क नेगेटिव नंबर्स. दिस साइड वाज 1 2 3 4 5 6. दिस टाइम आई विल मार्क -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन. तो ये साइड जो नंबरिंग करेंगे वो नेगेटिव नंबरिंग कर दिया हमने, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन. And that side it is 2 3 4 5 6 and so on, right. Now यही चीज अगर मुझे प्लेन, सपोज दिस इज अ प्लेन, प्लेग्राउंड है या कुछ है, मुझे ये पॉइंट लोकेट करना है, तो वो कैसे करते हैं हम लोग? उसके लिए हम लोग दो स्ट्रेट लाइंस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं. एक को नाम देते हैं हम लोग x एक्सिस and the other one is named as y axis. This you will study in detail in maths. ये हम ओरिजिन बोलते हैं, यहाँ पे x भी 0 बोल देते हैं, y भी 0 है. फिर इधर मार्क करते हैं 1 2 3 4 5, इधर पे -1 -2 -3. This is 1 2 3 4 -1 -2 -3, right? When you are here, suppose you are here, तो मैं बताऊंगा आप कहाँ पे हो. x के डायरेक्शन में 1, y के डायरेक्शन में 2. तो इसको ऐसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं. मैथ्स में डिटेल में पढ़ोगे आप, इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. सो वी लोकेट पॉइंट्स इन दिस केस. ये जो पॉइंट, ये जो चीजें लिखी 1 and 2, तो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स, राइट. मैथ्स में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी सी जरूरत है इसके लिए बता रहा हूँ. तो दीज आर कोऑर्डिनेट्स. तो आई विल से पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 1 2 पे खड़ा है. अगर मैंने बोल दिया आपको कि पार्टिकल -2 4 पे खड़ा, तो क्या आपको समझ में आएगा कहाँ पे हो? यस, -1 -2, फिर y के डायरेक्शन 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो आप. दिस इज -2 4, x के अलोंग -2, y के अलोंग 4. तो दिस बिकम्स, दिस इज योर पोजीशन, राइट. तो समरी क्या है यहाँ पे? पॉइंट्स आर लोकेटेड by its coordinates. कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हम लोकेट करते हैं.
right? If particle is moving on straight line पे अगर आप जा रहे हो, we require वन कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है. If object is moving along straight line, we require exactly one coordinate. And अगर आप दो डायमेंशन में जा रहे हो, प्लेन में चल रहे हो, तो what you need is two coordinates, x और y coordinate दोनों लगते हैं, right? But since we are studying motion in one dimension, motion along straight line, I require only one coordinate. So हम will stick to this thing, right? तो हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ मोशन इन वन डायमेंशन है. तो मुझे अगर कोई पॉइंट लोकेट करने के लिए बोलेगा तो आई नीड ओनली वन कोऑर्डिनेट. जैसे ये x इक्वल्स टू 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, -2 -3 -1. क्लियर है? ओके. तो पहले हमने सीखा इंस्टेंट और इंटरवल अलग अलग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है. देन वी हैव सीन अ मेथड टू लोकेट द पॉइंट्स. पॉइंट लोकेट करना सीखा हमने. पॉइंट लोकेट कैसे करते हैं? पॉइंट लोकेट करने के लिए हमको कोऑर्डिनेट्स यूज करने होते हैं. कोऑर्डिनेट्स वन डायमेंशन में एक ही कोऑर्डिनेट लगता है, टू डायमेंशन में दो कोऑर्डिनेट्स लगते हैं. सिंस वी हैव ओनली मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है सिलेबस, वी विल स्टिक टू वन कोऑर्डिनेट. जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ये शायद वो रोड है जिसपे मुझे चलना है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलता हूँ मैं, x इक्वल्स टू 0, एक एक मीटर मार्क कर लिया, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4. फिर उसके बाद जहां पे भी आप यहाँ पे हो तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू 2. व्हेन यू आर हियर यू विल से x इक्वल्स टू 4. जब भी आप यहाँ पहुंच जाओगे तो यू विल से x इक्वल्स टू -3, राइट? तो इस तरह से हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, राइट?